welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey, and today we are going to talk about an issue which has been making headlines. The issue is Bihar's ban on open sale of meat. So Bihar has banned the open sale of meat. Why is it? And why implementing it will be a bigger challenge? See, let's first talk about why this has happened. What are the recent developments? Let's talk about that first. So, announcement to ban the sale of meat in the open and without a license in urban areas of Bihar. So there was a recent announcement जिसमें बोला गया कि जो sale of meat है वो open areas में और license के बिना इस सेल को करना will be in urban areas has been banned. Okay, and due to concerns related to public health, sanitation and public sentiments. किस किस चीज़ों की वजह से? पब्लिक हेल्थ की वजह से, सैनिटेशन की वजह से एंड पब्लिक सेंटिमेंट्स. नाउ पब्लिक हेल्थ मतलब लोगों की हेल्थ खराब हो रही है. सैनिटेशन मतलब जिस भी जगह पे आप देखते हैं कि इस तरीके के बुचर शॉप्स होते हैं वहां पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है. प्लस public sentiments are being hurt. It is an important point. Now moving forward, let us talk more about it. So what are the key points? इस पूरे अनाउंसमेंट के की पॉइंट्स क्या हैं? सी, नो कंप्लीट बैन ऑन कंजम्पशन पे कोई बैन नहीं है, आप कंज्यूम कर सकते हैं. नॉन वेजिटेरियन फूड इज वाइडली प्रिविलेंट इन बिहार. नाउ नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो वाइडली प्रिविलेंट है बिहार में, बहुत ज्यादा मिलता है, इजीली अवेलेबल है. एनुअल प्रोडक्शन कितना है? इट्स अबाउट 420.59 thousand tons of meat and over 959,000 tons of fish. तो इतना तो एनुअल प्रोडक्शन है सिर्फ. आप देखेंगे these are big numbers, ये छोटे नंबर्स नहीं हैं. ओके, एंड टारगेटेड सेलर्स कौन से हैं इसमें? टारगेटेड सेलर्स हैं बैन ऑन ओपन प्लेसेस सच एज रोड साइड्स में जो बुचर्स हैं उन पे बैन लगाया गया है. वीकली मार्केट्स, जो वीकली मार्केट्स लगती हैं, हफ्ते में मार्केट्स लगती है, वहां पे दे सेल मीट, यहाँ पे बैन लगाया गया है. और पब्लिक पाथवेज इन म्युनिसिपल एरियाज, जो पब्लिक पाथवेज है और म्युनिसिपल एरियाज है इनमें बैन लगाया गया है. तो देखिए ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करी गई है लाइसेंस्ड शॉप तक. मतलब अब आपको बिहार में मीट सेल करने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, प्लस ओपन एरिया में वो आपकी शॉप नहीं होनी चाहिए, स्पेशली रोड साइड्स में, वीकली मार्केट्स में और पब्लिक पाथवेज इन म्युनिसिपल एरियाज में नहीं होनी चाहिए. देन शॉप्स मस्ट कंप्लाई विद हाइजीन स्टैंडर्ड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस शुड बी, सी दिस पॉइंट इज फॉर नॉट ओनली फॉर बिहार. ये पॉइंट आई particularly feel that it should be for everywhere in the country, because hygiene standards हमारी country में they are they have been very low. अगर आप किसी भी street side vendor का food देखेंगे तो hygiene standards maintain करने compulsory होने चाहिए हर जगह पर. Okay, and ban on roadside slaughter. So there has been a complete ban on roadside slaughter. अब आप roads के जो कोने में you find butcher shops, अब वो आपको नहीं मिलेंगी. Hanging or displaying meat outside shops is completely prohibited. Now this is also an important point. आप अपनी शॉप के बाहर hang भी नहीं कर सकते, डिस्प्ले भी नहीं कर सकते मीट को. Alright, and not allowed within a specific distance 50 to 100 meters of religious places or educational institutions. तो जो भी religious places हैं, educational institutions हैं, उनसे 50 से 100 मीटर की दूरी पर ये सारी places होनी चाहिए. So moving forward, let's talk about rationale behind the ban. Public reaction. Residents ने have raised concerns about the filth, foul smell and crowding. तो रेसिडेंट्स जो थे उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं किस चीज के बारे में? फिल्थ के बारे में, गंदगी के बारे में. देयर इज अ लॉट ऑफ फिल्थ, अनहाइजीनिक थिंग्स, प्लस फाउल स्मेल. wherever you find meat cutting or something, a butcher shop, there's always this foul smell that you feel, and that is again residents have raised concerned about it. Plus the crowding also, so there was a lot of crowding also happening. So that is what the third point that the residents have raised concerns about. Then open sale poses serious public health risk. Open sale जो होती है उसमें serious public health risk होते हैं. Increased risk of infection such as salmonella, E. coli and listeria. तो ये सारी infections के risk बढ़ जाते हैं. Plus a step towards cleaner cities. This is a very nice step towards cleaner cities. Whenever, see, if you want to have a shop,
get the license, have a shop. But open में, if you're slaughtering animals, that's not right, because it might be uncomfortable for the people who live there or who are passing by. Moving forward, let's talk about after successful implementation of in Darbhanga, this model has been expanded to all urban municipalities across the state. So दरभंगा में इसका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन होने के बाद इस मॉडल को एक्सपैंड कर दिया गया है सारी ही अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज पूरी स्टेट के अक्रॉस इन बिहार. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द लीगल बेसिस. अब इस पूरे अनाउंसमेंट का लीगल बेसिस समझ लेते हैं. व्हाट इज द लीगल बेसिस बिहाइंड ऑल दिस? सो बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 सेक्शन 345, no one can sell meat without obtaining a license from municipal authorities, and municipal bodies can impose conditions related to sanitation, waste management and location. म्यूनिसिपल बॉडीज इंपोज कर सकती हैं कंडीशंस किस चीज के रिगार्डिंग? सैनिटेशन के रिगार्डिंग, वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग और लोकेशन के रिगार्डिंग भी. Then provision for fines, seizure of goods and shop closure for violations. जो लोग भी violate करेंगे उसके लिए provisions होंगे fines के, goods को seize कर दिया जाएगा और shops का closure भी हो सकता है अगर ये सब चीजें violate की गई. Now what are the constitutional rights? Let us understand that. Article 19(1)(g), freedom to practice any profession or trade. Article 21, right to life and personal liberty and right to livelihood. ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स. नाउ लेट अस कंपेयर दिस होल सिनेरियो विद अदर स्टेट्स. सो नेशनल ट्रेंड है, पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर ट्रेंड टू रेगुलेट द मीट ट्रेड. इट इज नॉट ओनली बिहार, ये एक नेशनल ट्रेंड बनते जा रहा है मीट ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए. उत्तर प्रदेश इन 2017 स्ट्रिक्ट रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड मेकिंग लाइसेंसेस मैंडेटरी एंड बैनिंग सेल्स within 500 meters of religious places. तो 2017 में उत्तर प्रदेश में भी ये बैन लगाया गया था, लाइसेंस को मैंडेटरी किया गया था और 500 मीटर, किसी भी रिलीजियस प्लेस के 500 मीटर तक आप ये शॉप्स नहीं लगा सकते हैं, ऐसा बोला गया था. इन झारखंड ऑल्सो इन 2025, फॉलोइंग अ हाई कोर्ट डायरेक्टिव साइटिंग हेल्थ रिस्क एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, ओपन मीट सेल्स वर बैन. तो 2025 में झारखंड में भी हाई कोर्ट के एक डायरेक्टिव के बाद हेल्थ रिस्क को और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को चिल्ड्रन में मद्देनजर रखते हुए these open meat sales were banned in Jharkhand also. And lastly, Assam. Under the Assam Cattle Preservation Act 2021, strict regulations restrict beef sale near temples or in areas where consumption is not practiced. So असम में भी अंडर कौन से उसमें एक्ट में, कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 के अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे बीफ सेल में, स्पेशली नियर टेम्पल्स और उन एरियाज में जहां पे कंजम्पशन नहीं किया जाता है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट. अब इस पूरे इशू के इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो देयर इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी आल्सो. मीट्स एंड फिशरीज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द स्टेट इकोनॉमी. स्टेट की इकोनॉमी में मीट और फिशरीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 28% टू एग्रीकल्चर जीडीपी एंड 20% टू टोटल स्टेट जीडीपी. और जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है 28% किसमें? एग्रीकल्चरल जीडीपी में और 20% टोटल स्टेट के जीडीपी में. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस, मैनी from marginalized communities. So this also gives employment to a lot of people, including वो लोग जो marginalized communities से belong करते हैं. Now impact on informal vendors. अब जो informal vendors हैं जिनके पास shops नहीं है, licenses नहीं है, उन पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा impact पड़ेगा. What is that impact? Negative effect on informal sellers depend on roadside sales. जिनका livelihood depend करता है roadside sales of meat में, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये impactful होने वाला है ये decision. Plus need for funds to shift to licensed shops, rent, electricity, gas enclosures, which may reduce profits and jobs. अब देखिए, अब अगर किसी को कोई लाइवलीहुड चलाता है अपना रोड साइड मीट सेल्स से, तो दे आर गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड. उनको एक शॉप रेंट करनी पड़ेगी, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा. देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स दैट दे विल हैव टू डू टू
continue doing this work, that will reduce their profit और jobs भी reduce करेगा ये. Now, timing before Ramadan raises concerns for Muslim traders due to peak season income losses. अब we all know रमदान का सीजन चल रहा है एंड उसमें ये जो इस अनाउंसमेंट की टाइमिंग है ये भी कुछ कंसर्न्स रेज करती है कि जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उनका पीक सीजन है ये और उसमें इनकम के लॉसेस उनको ज़्यादा इनकर करने पड़ रहे हैं. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड. अब क्या वे फॉरवर्ड है, लेट अस टॉक अबाउट दैट. So need for a balance between public health objectives and livelihood constitutional rights. देखिए एक बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी को भी नुकसान हो, right? That should not be the case and there should be a balance. Definitely public health is very important, right? So public health objectives में और livelihood और constitutional rights में एक balance होना important है. So supportive policies जैसे training, subsidized infrastructure and easier licensing for small vendors will be important. Then fair enforcement without targeting any specific community. इस चीज़ का fairly enforcement होना बिना किसी भी specific community को target करे हुए. And long term solution की बात करना भी बहुत ज़्यादा important है. Develop modern slaughterhouses and regulated markets instead of only imposing bans. सिर्फ bans लगाना इस पूरी चीज़ का solution नहीं है. अगर आप किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर जॉब को आप बंद कर रहे हैं तो आपको नए डोर्स खोलने होंगे उस चीज़ उन्हीं लोगों के लिए जो लोग की लाइवलीहुड डिपेंड करती है इस काम में. एंड आपको मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस मे बी नॉट एग्जैक्टली रोड साइड्स पे लेकिन कहीं और आपको वो ओपन करने होंगे. प्लस रेगुलेटेड मार्केट्स इंस्टेड ऑफ ओनली इम्पोजिंग बैन्स. ऑलराइट, सो वी हैव कवर्ड द होल थिंग इन ग्रेट डिटेल. Now let us talk about the MCQ for revision. Let's see who was listening attentively. So, what is the primary objective behind the recent ban on open sale of meat and fish in urban areas by the Bihar government? A. Promote vegetarianism within the state. B. Respect religious sentiments of certain communities. C. Improve sanitation standards, ensure public health and stop unauthorized sales. D. Reduce crowding on roads. Whichever answer you feel is the right one, do let me know in the comment section below A, B, C or D. और आप अपने विचार इसमें भी मुझे बताइए कि ये डिसीजन आपको कैसा लगा. क्या इसमें कुछ और आपकी सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एंड दैट इज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.